Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Today we have to study the last lines of the poem I explain a few things. ये जो पोइम हमारी चल रही है, आप बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए आप और अपनी किताब निकालिए, टेक्स्ट बुक अपने अपने सामने रखिए और देखिए कि कहाँ से हमें आज पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है लाइन्स 39 to 62, यानी एंड तक हमें आज पढ़ना है। लास्ट इसका जो है थर्ड लेक्चर आज हम देंगे आपको, और आज हम इंशाल्लाह इस पोइम को मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एंड वी ऑल नो दैट दिस पोइम विच इज़ टाइटल्ड एज I explain a few things. The writer of this poem is Pablo Neruda. Pablo Neruda. And dear students, the line starts from opposite to you. I have seen the blood of Spain rise up to drown you in a single wave of pride and nerves. आप अपनी किताब खोलिए, किताब को सामने रखिए, कलम को सामने रखिए, कापी को भी अपने साथ रखिए और देखिए मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊँगा। आप जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं इस तरह से आप देखिए, घर पर बैठ कर भी आप स्कूल की तरफ पढ़ सकते हैं। अपनी बुक अपने सामने रखिए तो और देखिए क्या पढ़ना है आज हमें। लाइन नंबर 39 to 62। तो डियर स्टूडेंट्स, opposite to you I have seen the blood of Spain rise up to drown you in a single wave of pride and nervous generals, traitors. Consider my dead house, consider Spain broken, but from every dead house burning metal flows. In place of flowers, but from every hollow of Spain, Spain rises. But from every dead child rises a gun with eyes, but from every crime or born bloodless, that will find you one day in the house of the hurt. In the house of the heart, you will ask why his poetry has nothing of the earth, of the leaves, of the grand volcanoes of his native country. Come and see the blood through the streets. Come and see the blood through the streets. Come and see the blood through the streets. इन ये जो लास्ट जो लाइन्स हैं, इनमें ये जो तबाही मच गई वहाँ इस स्पेन में, तो जो वहाँ पर जो वो जो वार उठा, वहाँ जो खाना जंगी शुरू हुई, उसकी वजह से क्या तबाही हुई, वो उस तबाही को पोइट जो है पेब्लो नेरूदा बयान कर रहा है। और इसी में ये भी ये जवाब भी लिख रहा है कि मैंने इसने क्यों लिखा, इसने इसका टाइटल आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स क्यों रखा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, लेट अस फर्स्ट हैव ए ब्रीफ look at the political situation in Spain in those days. In 1930, dictatorship was overthrown in Spain and the Republicans came to power in 1930 and they ruled up to 1935. They made all kinds of laws for the benefit of workers. Pablo Neruda was born in Spain as a diplomat. He was very happy with the political developments in the country. But then in 1936, a civil war broke out. A revolt was led by General Francisco Franco. He was helped by the other dictators like Hitler and Mussolini in Europe. The revolutionaries caused terrible bloodshed during the civil war. About 1 million people were killed and there was fire and destruction all around. The power of the country came into the hands of Franco, who brought in military dictatorship. All this filled Pablo Neruda with terrible pain. In these lines, the poet expresses hope that the people of Spain will one day rise up and have their revenge on these
perpetrators of cruelty and bloodshed. Here, the poet in this, dear students, in these lines, the poet says that he has seen the bloody revolutionaries of Spain causing terrible destruction and killing people. Among those killed ones, there were his friends also, the heartless, revolutionaries tried to drown the whole of Spain in blood. They were blind in their pride and stabbed people to death with their knives. They were traitors in the form of military generals. The poet's own house was all broken and destroyed. Luckily for the poet, he was not in Spain at that time. He had been recalled home in Chile. ये इसलिए बच गया, खुद तो पेब्लो निरोधा इसलिए बच गया था क्योंकि ये उस वक़्त चिली में वापस बुलाया गया था। उस वक़्त लड़ाई के दौरान ये स्पेन में मौजूद नहीं था। In spite of all this distraction, the poet had a firm hope in his heart. He was certain that in Spain a fiery determination would now grow in place of flowers in every house. There would be an uprising in every part of Spain. In place of every dead child, there would be born a child with a gun in his hand, and in answer to every crime, there would be born children with billets in their hands, and they would find their targets in the hearts of those criminals and killers. The poet has now stopped writing poems on the beauty of nature. The theme of the poem has now changed, and the theme of his poems has now changed. People could ask him why he no longer wrote poems of the earth, of the leaves, and of the great volcanoes of his native country, that is Chile. The poet tells such people to come and see the blood flowing in the streets. Then they will themselves know why the poet has stopped writing poems on the beauty of nature. With a deep pain in his heart, he repeats, "Come and see the blood in the streets." तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1930 ईस्वी में यहाँ स्पेन में एक जमहूरी ताकत खड़ी हुई, एक जमहूरी हुकूमत खड़ी हुई जो 1935 तक अपने मजबूत रही, ताकत में रही। उसने बहुत बड़े काम किए। इस हुकूमत ने मज़दूरों के फ़ायदे के लिए कई कानून बनाए गए। पेब्लो निरोधा उस वक़्त स्पेन में एक सरकारी सफ़ीर के तौर पर तैनात रहा था। मुल्क में होने वाली सियासी तब्दीलियों से वो बहुत खुश था, लेकिन फिर 1936 ईस्वी में खाना जंगी शुरू हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि इस स्पेन में 1936 ईस्वी में खाना जंगी शुरू हो गई। उस वक़्त जो फौजी जनरल था उसका नाम था फ्रांको फ्रांसिस्को, जो है उसकी रहनुमाई में एक गदर शुरू हो गया। यूरोप में हिटलर और मसोलिनी जैसे दूसरे तानाशाहों ने इसकी मदद की। खाना जंगी के दौरान फसादियों ने खौफनाक खून खराबा मचाया। तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए और सभी जगह आग और तबाही के नज़ारे थे। मुल्क की ताकत फ्रैंक के हाथ में आ गई, जिसने फौजी तानाशाही शुरू कर दी। इन सब बातों ने पेब्लो निरोधा को इंतहाई तकलीफ पहुँचाई। इन लाइन्स में शायर ये उम्मीद जाहिर करता है कि एक दिन, यानी यहाँ पर इसकी एक उम्मीद भी है कि एक दिन स्पेन के लोग उठ खड़े होंगे और वहशाना खून खराबा करने वाले इन लोगों से बदला लेंगे। यहाँ पॉइंट कहता है कि स्पेन के खूंखार फसादियों को भयानक तबाही मचाते हुए और लोगों को मारते हुए देखा। उन मारे गए लोगों में उसके दोस्त भी थे। आप जानते हैं कि ये 3 दोस्त इसके वहाँ जो थे, राहुल जो था और बाकी 2 थे। जालिम फसादियों ने उन पूरे स्पेन को खून में डुबोने की कोशिश की। वो अपने घुमंड में अंधे हो चुके थे और उन्होंने अपने चाकू घूम कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और वो फौजी जनरलों की शक्ल में मुल्क के गद्दार थे। शायर का जो अपना पूरा घर था वो तोड़ दिया गया और उसे तबाह कर दिया गया। पॉइट की खुशकिस्मती थी, पेब्लो निरोधा जो है उसकी खुशकिस्मती थी कि वो उस वक़्त स्पेन में नहीं था। उसे वापस अपने मुल्क में बुलाया, यानी चिली बुलाया गया था। और ये जो पूरी तबाही है, इस तबाही के बाद जो पॉइट जो है पेब्लो निरोधा जो है
उसने अपने दिल में उसके दिल में एक उम्मीद थी कि स्पेन के हर घर में अब फूलों की जगह एक ज़बरदस्त पक्के इरादे का जन्म होगा। स्पेन के हर हिस्से में एक बगावत होगी। हर एक वफात पा चुके बच्चे की जगह वहाँ ऐसे बच्चों का जन्म होगा जिनके हाथों में पहले ही बंदूकें पकड़ी होंगी। और हर एक जुर्म के जवाब में वहाँ ऐसे बच्चों का जन्म होगा जिनके हाथों में गोलियां होंगी। वो इन्हें अपने निशानों उन मुजरिम अपने निशाने वो अपने निशाने उन मुजरिमों और कातिलों के दिलों में दिखाई देंगे। शायर ने अब कुदरत की खूबसूरती पर नज़में लिखनी बंद कर दी हैं, और यही वजह है कि हम जानते हैं कि उसने क्यों जो है ब्यूटी ऑफ नेचर पर लिखना बंद किया। क्योंकि इसको इस बात का जो सदमा था, जो उसके सामने खून रेज़ी हुई थी, इस सदमे की वजह से वो अब इसके बाद और कोई जो है अपनी नज़म ब्यूटी ऑफ नेचर पर नहीं लिख सका। लोग अब इससे पूछ सकते हैं कि वो अब अपनी वतन चिली की सरजमीन, वहाँ के पेड़ पत्तों और वहाँ के बड़े बड़े आतिशफशानी पहाड़ों के बारे में नज़में क्यों नहीं लिखता था। शायर ऐसे लोगों से कहता है कि वो आकर गलियों में बहते हुए खून को देखें, तब उन्हें खुद पता चल जाएगा कि शायर ने कुदरत की खूबसूरती के बारे में नज़में लिखनी क्यों बंद कर दी हैं। अपने दिल में गहरा गहरा दर्द लिए हुए वो फिर से कहता है, कम एंड सी द ब्लड इन द स्ट्रीट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वाई डजेंट हमारा आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वाई डजेंट द पोइट राइट द पोइट्री ऑफ स्वीट ड्रीमर्स। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। आप ध्यान रखिए, द टेरिबल ब्लड शेड ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर हैड लेफ्ट द पोइट इन टेरिबल शॉक. About a million innocent people were killed in this war. They included some of his best friends also. Numberless children were also killed. Blood ran in the streets freely. Now the poet was in no mood to write the poetry of sweet dreamers. Now he could only write about the sufferings of poor workers who were oppressed and deprived of their rights. In his poems, he would say, "Come and see the blood in the streets." तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने इस पोइम जो है जिसका टाइटल है आई एक्सप्लेन ऑफ फ्यू थिंग्स which has been written by Pablo Neruda, आज को हमने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही अब इसके हम क्वेश्चंस 1-2 दिन तक मुकम्मल करेंगे। तो इस तरह से आज हमारा पोइट्री का पोर्शन जो है उसको हमने ख़त्म किया। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि आने वाली संडे जो है जो 23rd ऑफ दिस मंथ, उस दिन हम शाम नमाज के बाद आपका एक टेस्ट लेंगे। एक पोइट्री पोर्शन का टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। हम देखेंगे कि कौन कौन सी बच्ची घर पर मेहनत कर रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो उसी बच्ची का फार्म एग्ज़ाम के लिए भर दिया जाएगा जो घर पर वीडियो क्लासेस देखती है और घर पर मेहनत करती है। और जिन लड़कियों के पास काम मुकम्मल नहीं होगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है प्रेजेंट नहीं रहेंगी, उसको जो है अटेंड नहीं करेंगे, उनका फार्म उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चियाँ घर पर जो हैं मेहनत करती होंगी और अपनी किताबों पर अपनी वीडियो क्लासेस जो टीचर्स डालते हैं उनको देखती होंगी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।